Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter 2, that is the end of bipolarity in contemporary world politics. And under this chapter we have discussed the disintegration of USSR, how the USSR was disintegrated. All the major events we have discussed in the previous class, and we have also started the causes of disintegration. What were the causes of the disintegration of USSR? And in this regard, we have discussed the problem which was associated with the economy of the USSR. We have seen that USSR was under the huge pressure to equate its military and nuclear arsenal with the US, and because of this there was economic problem was arising, because जो भी resources थे USSR के, USSR को उस रिसोर्स का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मिलिट्री और न्यूक्लियर आर्सेनल को मेंटेन करने में स्पेंड करना पड़ता था बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर. And then we have also seen that USSR has to give financial help to the satellite countries of the Eastern Europe. Not only this, there were Central Asian countries which were the part of USSR. These countries were economically very poor, and USSR has to give financial help to these Central Asian countries also. So these two major reasons were there for the pressure on the economy of Soviet Union. इकोनॉमी पर प्रेशर था, बहुत ज़्यादा हेवी एक्सपेंडिचर होता था, एंड ये जो हेवी एक्सपेंडिचर था दैट वाज फॉर मेंटेनिंग द न्यूक्लियर आर्सेनल, फॉर गिविंग द फाइनेंशियल एड्स, एंड मोर ओवर what was another reason was the political and economic system of USSR was not able to fulfill the aspirations of the people. Now we see that with the passage of time what happened, that the common people become knowledgeable about the economic advancement of the Western countries. They were observing the disparity which was existing between the USSR and the Western countries. It was told to the people by the system that the USSR, the system of USSR is the best, and the Western world cannot match the strength of the USSR, the economic strength of the USSR. But in actual practice what was happening, that it was lagging behind the Western world, and now it was a very great psychological as well as political shock for the people, क्योंकि वो उन्होंने इतने लंबे समय से सपोर्ट देते रहे, वो दे वर सपोर्टिंग द सिस्टम बिकॉज दे वर ऑफ द ओपिनियन कि उनके सिस्टम में काफ़ी अच्छाइयाँ हैं, सो मैनी गुड थिंग्स आर देयर इन देयर सिस्टम, एंड अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दिस सिस्टम. लेकिन लास्टली दे स्टार्टेड टू फील कि जितना एडवांसमेंट वेस्ट का हुआ है उस हिसाब से उनका एडवांसमेंट नहीं हो पाया, तो ये उन्हें समझ में आने लगा कि उनके सिस्टम का फेलियर है.
और ये कहना कि हम सुपीरियर, जो कोल्ड वॉर था, द कोल्ड वॉर वॉज दिस ओनली कि जो दोनों पावर ब्लॉक्स थे वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते थे। तो इसमें लोग भी इन्वॉल्व थे इस कोल्ड वॉर में। पीपल, ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो इन्वॉल्व, दे वर विद देयर ओन कंट्री। लेकिन बहुत दिनों बाद अब उनको ये समझ में आ रहा है कि जो वो सोचते थे वो सच नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए झटका था, साइकोलॉजिकल भी और पॉलिटिकल भी। सो व्हाट वी सी कि अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देयर वाज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन was also existing in the Soviet system. Why the administration and politics became stagnant? The reason was the rule of single party system. The system which was adopted in USSR was the single party system, and for the past 70 years we see that Communist Party was ruling the Soviet Union. And this single party system led to the unaccountable government, because the government becomes accountable when there is opposition party. If there is no other party, there is only single party, then the government can never be accountable. And the same thing happened in USSR. And not only the government was unaccountable, but the administration was also becoming stagnant, because we see that it was a kind of totalitarian state in which the state was powerful. The state was more important than the individual, and this political power of the state was used by the administration. So the bureaucracy became very powerful. इनकी एक अलग क्लास हो गई, ब्यूरोक्रेट्स की एक अलग क्लास हो गई, जो कि सबसे इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल क्लास हुआ करता था सोवियत यूनियन में। तो द कॉन्सेप्ट वाज कि हम ओनली in order to bring equality, this institution of private property was abolished, and all the freedom of the people were crushed, because the system wanted to bring equality. But what we see that in the in society, this new class, the class of bureaucrats, arose, and they were the most powerful and influential class of the society. And not only this bureaucracy, they were also unaccountable, and this because of this nature of unaccountable, what happened, that corruption also was existing in the bureaucracy, and all this led to the dissatisfaction among the people of the country. And what we see that people started to they started not to identify themselves with the system. उनको ये लगने लगा कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो उनका नहीं है। हमें कब लगता है कि हमारा सिस्टम है? जब हमें ये समझ में आता है कि हाँ, हमारी कोई वैल्यू है, हम जो अगर कुछ भी डिमांड रख रहे हैं तो हमारी बात को सुना जा रहा है, हमारे लिए भी कुछ है, यहाँ पे कोई प्रोविज़न हमारे लिए भी है, हम जैसे आम जनता के लिए। तो तब देन ओनली द कॉमन पीपल रिलेट देमसेल्व्स, आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द सिस्टम। अब जो सिस्टम वहाँ प्रिवेल कर रहा था यूएसएसआर में, उसमें क्या हो रहा था कि जो कॉमन पीपल थे,
दे उनको ये कभी फीलिंग ये आनी बंद हो गई थी कि ये उनकी अपनी गवर्नमेंट है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्रीडम, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लैक ऑफ अकाउंटेबल गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं थी, जब एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी पावरफुल बनती जा रही थी, करप्शन आ रहा था, तो वैसे सिस्टम में जो कॉमन पीपल है वो कभी भी अपने आप को सिस्टम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड because of this what happened that the government started to lose the support of the people। जो लोगों का सपोर्ट होता है गवर्नमेंट को, वो सपोर्ट गवर्नमेंट स्लोली इट स्टार्टेड टू लूज द सपोर्ट। सपोर्ट हमें तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट को, लोगों का सपोर्ट तभी मिलेगा जब लोगों के को ये समझ में आए गवर्नमेंट के एक्ट से कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है। और ये चीज़ नहीं हो रही थी। यूएसएसआर के अंदर जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा था उसमें लोगों को इस तरह का बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आता था कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए काम करती है। एंड दैट इज़ वाई दिस हैपेंड कि जो सपोर्ट था लोगों का वो कम होता गया। सो ये तो जो सिस्टम था उसके अंदर की प्रॉब्लम्स ये थी, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। उसके ऊपर से अभी जो हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक प्रेशर था, और इकोनॉमिक प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा जो उसका एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा था, और इन सब के साथ साथ जो लोगों का सपोर्ट था वो कम होता जा रहा था। एंड इन दिस बैकग्राउंड व्हाट कम्स द रिफॉर्म्स ऑफ द गोर्बाचेव का रिफॉर्म्स इन सब बैकग्राउंड में आता है सामने। एंड जो कुछ भी गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स लाया, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हुई थी। 1985 में गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने, एंड एट दैट टाइम जो फाइनेंशियल पोजीशन थी यूएसएसआर की वो बहुत ही ख़राब पोजीशन में पहुंच चुका था यूएसएसआर। एंड गोर्बाचेव वांटेड टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, एंड ही वांटेड कि हम इस तरह के रिफॉर्म्स लाएं कि जो हमारा एक गैप आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो हमसे आगे होते जा रही है, गैप आ रहा था दोनों के बीच में, तो इस गैप को कैसे हम फिल करें। वो ऊपर आगे हमसे जा रहे थे, हम पीछे हो रहे थे। तो रिफॉर्म्स के थ्रू गोर्बाचेव ने यही एफर्ट किया कि वेस्ट के साथ हम चल सके, वेस्ट से पीछे ना हो। और साथ ही साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी लूज करना स्टार्ट किया, जो बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था उसको लूज किया, इकोनॉमी को उन्होंने लूज किया। तो उन्होंने ओपननेस लानी शुरू की, जो कि हमने डिस्कस किया था कि वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो क्लोज था, पॉलिटिकल सिस्टम क्लोज था, एडमिनिस्ट्रेशन क्लोज था, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। और दिस क्लोजनेस, ये जो क्लोज्ड था, बिकॉज ऑफ दिस क्लोज्ड नेचर ऑफ द इकोनॉमी, उसमें स्टैग्नेंसी आई। क्लोज्ड नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें स्टैग्नेंसी आई। तो जो गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स लाया उसका एफर्ट, उसका एम यही था कि धीरे धीरे ओपन किया जाए। हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को ओपन करेंगे, इवन पॉलिटिकल सिस्टम को भी उन्होंने आगे चल के ओपन किया। हालांकि स्टार्टिंग में उनका जो एफर्ट था वो सिर्फ इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन पे था। ओके, सो गोर्बाचेव ने बिल्कुल जिसको कहा जाए कि जो प्रॉब्लम्स थी यूएसएसआर के पॉलिटिकल सिस्टम की, यूएसएसआर के जो सिस्टम था, जो सोवियत सिस्टम को जिसको हमने डिस्कस किया है, द इकोनॉमिक सिस्टम, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ चुके थे कि कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे नहीं, कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे क्यों हम वेस्ट के साथ नहीं चल पा रहे हैं, क्यों हम वेस्ट के पीछे हो रहे हैं, वाई आर वी लैगिंग बिहाइंड द वेस्ट। ये चीज़ें उनकी समझ में आ चुकी थी, और उसके बेसिस पे ही जो उनका डायग्नोसिस था कि क्यों प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए उन्होंने जो भी डायग्नोसिस किया वो बिल्कुल उनका सही डायग्नोसिस था, और उस डायग्नोसिस के बेसिस पे ही उन्होंने रिफॉर्म्स लाए। बट व्हाट वी फाइंड कि उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाया
those reforms became one of the most important reason for the disintegration of USSR. रिफॉर्म्स ला रहे थे वो, उनके रिफॉर्म्स का एम ये था कि यूएसएसआर जो प्रॉब्लम्स आ गई है सिस्टम में यूएसएसआर के, उसको हम दूर करेंगे, इसको हम मजबूत बनाएंगे यूएसएसआर को. He was not directed towards the disintegration of USSR. वे USSR को disintegrate नहीं करना चाहते थे, बट उन्होंने जो रिफॉर्म्स स्टार्ट किया, एक्चुअली दोज रिफॉर्म्स स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR. कैसे, क्यों? एक्चुअली गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स लाया उसकी एक्सपेक्टेशन लोगों को नहीं थी. जो सिस्टम वहाँ पर प्रिवेल कर रहा था पिछले 70 ईयर्स से अराउंड, जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, उस सिस्टम के अंदर लोगों को जो लाइफ लीड करनी पड़ रही थी, उसमें दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कोई रिफॉर्म होने जा रहा है. बट व्हेन सच रिफॉर्म्स, जिसमें हम ओपननेस देख रहे हैं, एक तरह से लिबरलाइज कर रहे हैं वो इकोनॉमी को, वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो ये जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. और ये अनएक्सपेक्टेड मूव जो उनका था, उसके कारण कुछ ऐसे फोर्सेस जो थे वो मोशन में आ गए, जिन फोर्सेस को कंट्रोल कर पाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो गया. एक जो लोगों के अंदर दबी हुई जो एस्पिरेशंस थे, बट वो एस्पिरेशंस को काफ़ी सप्रेस कर दिया गया था अंडर द कम्युनिस्ट रूल. और ये जो सप्रेस्ड उनके एस्पिरेशंस थे, वो उस रिफॉर्म्स का कहा जा सकता है, जैसे उसकी जो रिफॉर्म्स की जो हवा लगी, उससे वो आग की तरह धधक गई, हम इसको कह सकते हैं. एक छोटी सी जो चिंगारी जल रही थी, उसको इस रिफॉर्म्स के ने ऐसी हवा दी कि वो छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी ज्वाला बन गई. यू कैन से इट लाइक दैट, है ना. तो ये जो चीज़ें हुई, ये रिफॉर्म्स ने कुछ ऐसे चीज़ों को स्टार्ट कर दिया, ऐसे फोर्सेस को इसने एक्टिव बना दिया जिसको कि कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल था. एंड वन मोर थिंग वॉज हैपनिंग कि जो भी रिफॉर्म्स इन्होंने लाया, लोगों ने उसको पसंद किया. पीपल अप्रिसिएटेड दोज रिफॉर्म्स, बट एट द सेम टाइम जिन लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, वही लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज इन देयर ओपिनियन उनको ये लग रहा है कि गोर्बाचेव जो ला रहे हैं प्रोसेस, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ये रिफॉर्म्स और भी ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए. उनको ये लगा कि ये जिस तरीके से इनका रिफॉर्म चल रहा है, जो इनका पेस है, जो रेट है रिफॉर्म का, वो बहुत ही स्लो है. और इतने स्लो होने से काम नहीं चलेगा, इनको बहुत तेज़ी से चेंजेस लाने होंगे. तो एक ग्रुप था जो कि जिसको हम कह सकते हैं जो सप्रेस्ड ग्रुप था, जो कि मेजॉरिटी था USSR का. दैट मेजॉरिटी वॉज अगेंस्ट was with the reforms of the गोर्बाचेव. गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स के वो साथ थे, लेकिन उनको ये लगता था कि गोर्बाचेव को और तेज़ी से रिफॉर्म्स लाने चाहिए और बहुत ज़्यादा जल्दी काम करना चाहिए, बहुत स्लो कर रहे हैं वो. तो इस कारण से वो जो ग्रुप था, उसका सपोर्ट गोर्बाचेव को नहीं मिल पाया. एंड ऑन द अदर हैंड देयर वर पीपल, दैट वाज माइनॉरिटी वी कैन से, बट देयर वाज a group of people who were getting benefit from the prevailing system, the system which was prevailing before the coming of the Gorbachev. गोर्बाचेव के आने के पहले जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, उस सिस्टम से एक ग्रुप था जिसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था. तो दैट ग्रुप बिकेम टोटली अगेंस्ट द रिफॉर्म्स ऑफ द गोर्बाचेव. उस ग्रुप को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ बिकॉज ऑफ रिफॉर्म्स. और वो आगे फ्यूचर को भी वो देख रहे थे कि जिस तरह से ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं, तो हमारा जो अभी तक डोमिनेंस था सिस्टम में, वो सब खत्म हो जाएगा. तो दे वर हाईली अगेंस्ट दिस लीडरशिप.
और दैट वाज द रीज़न हमने कूप देखा कि किस तरह से वहाँ पे कूप भी होता है गोर्बाचेव के अगेंस्ट, दो द कूप वाज अनसक्सेसफुल। तो ये चीज़ें जो हैं सपोर्ट बेस्ड जो है गोर्बाचेव का कम हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं बहुत स्लो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स इनको लाना ही नहीं चाहिए था। तो अगर गोर्बाचेव को लोगों का सपोर्ट होता तो शायद डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता, बट लोगों का सपोर्ट उनको नहीं मिला बिकॉज जिस तरह के सिचुएशन थे जो हमने डिस्कस किया, दैट इज़ द रीज़न। देन देयर वाज अनदर कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR. The cause was the rise of nationalism. In USSR, we see that during this period when Gorbachev brought reforms, at that time the feeling of nationalism was very high in some of the republics of USSR, and they wanted sovereignty. They did not want कि हम अब USSR के अंदर हमें नहीं रहना, हमें sovereign state बन जाना है because of this feeling of nationalism. And इस तरह का जहाँ पर feelings आया, जो main जो countries थे जिनमें इस तरह के feelings आए, वो रसिया था जो कि USSR का ही एक republic था, and then Baltic republics like Estonia, Latvia, Lithuania, these were the countries जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा nationalism की feeling आई. And this feeling of nationalism, this desire to be a sovereign country, that became the most important and we can say immediate cause for the disintegration of USSR. But regarding this rise of nationalism, the scholars have different views, because some are of the view that the nationalist feelings were there from the very beginning. It's not कि गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स लाए उसके कारण लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई. गोर्बाचेव के आने के बहुत पहले से जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो लोगों के दिल में थी, और अगर गोर्बाचेव ये रिफॉर्म्स नहीं भी लाते तो भी ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो कि बहुत पहले से थी वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही थी. द इंटेंसिटी ऑफ दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो अगर गोर्बाचेव ये रिफॉर्म्स नहीं भी लाते तो भी ये बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ये डिसइंटीग्रेट हो के रहता. ऐसे कुछ जो स्कॉलर्स हैं they are of the view, and we will not be able to know कि क्या होता अगर गोर्बाचेव का रिफॉर्म्स नहीं आता, गोर्बाचेव कोई रिफॉर्म्स नहीं लाते तो क्या होता. We cannot predict about that situation. And there is another view also. Many observers are of the view that whatever reforms brought by Gorbachev, actually those reforms speeded up and increased the nationalist dissatisfaction of the people, and the dissatisfaction arose to such point that the government was not able to control it, and that is why the disintegration took place. So in the opinion of these observers, the reforms of the Gorbachev was responsible for bringing this feeling of nationalism in the people, और इसने nationalism की feeling को इतना ऊपर के लेवल पे ले गए गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स की गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई, एंड अल्टीमेटली वो डिसइंटीग्रेट हो गया. In this context, one important issue is there, because the size of USSR was very big. It was the biggest country area wise. तो इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी.
बहुत ही अलग अलग कल्चर के जो लोग थे उनसे मिलकर के यूएसएसआर बना था. एंड स्पेशली द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया, these countries were very distinctive, these countries had very distinctive culture. So what was the opinion? It was felt by the people during the Cold War era that this within the USSR, if ever feeling of nationalism is going to arise, it will arise in the countries of Central Asia, in the republics of Central Asia. क्योंकि उनकी जो कल्चर थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थे, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनकी जो कल्चर थी वो टोटली डिफरेंट थी अदर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर से. अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो कल्चर था वो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट कल्चर था. एंड वी हैव सीन कि किस तरह से डोमिनेंस ऑफ रसिया वाज देयर इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द होल यूएसएसआर. रसियन कल्चर को इम्पोज किया जाता था. तो इस तरह का ओपिनियन बनता था कोल्ड वॉर के समय में कि अगर यूएसएसआर में कुछ भी प्रॉब्लम कभी आई, नेशनलिज्म की फीलिंग अगर आई, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ही स्टार्ट होगी. लेकिन एक्चुअली जब ये चीज़ें हुई, जब नेशनलिज्म की फीलिंग आई, जब लोगों के डिमांड्स हुए कि हमें सॉवरेन कंट्री चाहिए, तो उस समय हम देखते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थे, दे वर नेवर इन सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. दे वांटेड टू बी विथ द यूएसएसआर ओनली. वाई दिस काइंड ऑफ डर क्यों था नेशनलिज्म की फीलिंग वहाँ से आएगी? क्योंकि वो डिस्टिंक्ट उसका कल्चर था. लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ से बिल्कुल भी नहीं आई नेशनलिज्म की डिमांड, बल्कि वो तो चाहते थे कि यूएसएसआर बना रहे, वो यूएसएसआर के साथ रहे, बिकॉज उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत ही पुअर थी. और इसलिए वो चाहते थे कि वो यूएसएसआर के साथ रहें ताकि उनको जो फाइनेंशियल हेल्प यूएसएसआर प्रोवाइड करता है वो उनको मिलती रहे. एंड व्हाट वी सी दैट दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म was the strongest in the more prosperous republics of the USSR. In those republics of USSR which were more European, like it started in Russia, then the Baltic areas and Ukraine, Georgia, all these were the prosperous republics of USSR. And there was dissatisfaction among these prosperous republics of USSR. The another reason for dissatisfaction कि उन्हें ये पता था कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, they are their economic condition is very poor, and the prosperous countries has to support these poor countries and poor republics of the USSR, and they were not in they did not want to continue this support, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम एक फेडरलिज्म है. यूएसएसआर जो था वो एक फेडरल कंट्री था, और इस फेडरल कंट्री के अंदर क्या था कि कुछ जो रिपब्लिक्स थे वो काफ़ी हाईली अनडेवलप्ड थे, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे. और बाकी के जो रिपब्लिक्स थे, जैसे कि हम रसिया की बात कर रहे हैं, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, दीज वर फुल्ली डेवलप्ड. तो इनको अपने जो डेवलपमेंट था उसका जो बेनिफिट था, पूरा बेनिफिट इनको खुद नहीं मिल पाता था, बिकॉज दे हैव टू contribute it for the Central Asian countries. That is why they wanted to get rid of these poor republics of the USSR, और वो उससे छुटकारा पाकर अपने आप को एक sovereign state के फॉर्म में देखना चाहते थे. So these are the important reasons for the disintegration of USSR. This is all for today. In the next class, I will write all the causes of disintegration of USSR in points only.
Okay, so we will continue our discussion regarding this disintegration. We will see the consequences. What were the consequences of the disintegration of USSR?